Crores of resume lie around on Naukri.com, millions of profiles on LinkedIn. How do we then stand out in an interview application? We do that by making a winning resume which cannot be ignored. Making a resume for the first time? First time should be the charm, aye? Lots to go through. अगले 15 मिनट में we will cover the following aspects of resume making. What to put in a resume, what should be the ideal size, what to do if I have very few points, or what to do if I have many, how to format it, all these things and more. Let's get started. To begin, we'll start by learning how to get the process started. शुरुआत ही कैसे करें. Then we will move in to understanding how to segregate a resume into multiple parts, what I call buckets. Next, I'll give you some formatting tips because एक बार अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, फिर ये जरूरी हो जाता है कि समझ पाएं कि उसको किस तरीके से स्ट्रक्चर करें और ब्यूटिफिकेशन कैसे करें, राइट? And finally, I'll show you some resume types, samples and tools. In this entire discussion, I'll run you through my 12-year-old resume from IIM Ahmedabad. That resume got shortlisted in all marketing companies. I was interested in marketing on campus. उस resume को sample बना के we'll go through the standard process of resume making ताकि आप अपना पहला resume अच्छे से बना पाएं और जरूर shortlist हो. That is what our objective is. पहला step, create a master CV. Master CV क्या होता है? Master CV is a document where you write down all the things that you have learned or done or are interested in so far in your life. सारा कुछ लिख डालिए. Don't think about वो क्लास जूनियर स्कूल का है या मिड स्कूल का है या हाई स्कूल का है, इंटर क्लास, इंट्रा क्लास, रीजनल, वट एवर, लेवल डजेंट मैटर, एज डजेंट मैटर. मास्टर सीवी में सब कुछ लिख डालिए. कोई कोर्स किया है, कहीं कोई एक्सपीरियंस लिया है, एनीथिंग दैट यू हैव डन, वॉलंटियरिंग किया है, कैंपेनिंग किया है, कुछ भी, राइट डाउन एवरीथिंग इन योर मास्टर सीवी. मास्टर सीवी इज द फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग अ गुड रेज्यूमे. मास्टर सीवी आपका इंट्रोस्पेक्शन पार्ट है. मास्टर सीवी में आप एक्चुअली सारा कुछ लिख डालते हैं ताकि आप उनमें से फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपनी दैट यू आर अप्लाइंग फॉर आप अकॉर्डिंगली वेरिएंट्स क्रिएट कर पाए. तो इस टास्क में टिपिकली 1 से 2 हफ्ता टाइम लगता है. मास्टर सीवी बनाते टाइम ही अगर कोई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आपको लेट्स से वेरिफिकेशन मेल्स फ्रॉम द कंपनीज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आपने कोई काम किया है या कोई सर्टिफिकेशन आपको मंगाना है अपने घर से या कहीं से, तो ये सारी चीजें आपको मास्टर सीवी के टाइम के साथ ही कर लेना चाहिए. मूविंग फर्दर, 2 पार्ट में अपन इसको फर्दर देखते हैं. मास्टर सीवी में सबसे पहले तो सारी हेडिंग्स लिख डालो. क्या क्या हेडिंग्स हो सकती है? तो हेडिंग्स हो सकती है भाई एकेडमिक्स, करिकुलर अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, को करिकुलर अचीवमेंट्स. वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ भाई, मैं किसी क्लब का मेंबर था, मैंने कोई मैगजीन में एडिटोरियल टीम में था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं कोई पूजा समिति ऑर्गेनाइज कर रहा था, राइट? अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज समथिंग विच यू हैव डन, लेड और पार्टिसिपेटेड इन. Apart from that, you can talk about any projects you have done, any certifications, courses, internships, your work experience, right? A lot of these things, apart from your basic demographic and contact information, right? So, सब कुछ पहले headings लिखो, उसके अंदर फिर detailed sub points बनाना start कर दो. जब आप detailed sub points में जाते हो, that is the place where you think about writing down anything and everything which you have done as a part of your academics or curriculum or anything that you have certified or any of your interest. So, or you talk about your personality, your personal vision or statement. So, all these things master CV में सब कुछ लिख डालना चाहिए. I believe if you are thinking कि अभी अपन फ्रेशर हैं, 1 पेज का रिज्यूमे बनाएंगे, तो प्लीज अंडरस्टैंड मास्टर CV 1.5 से 2 पेज का बन जाना चाहिए ताकि उसमें से आप पॉइंट्स फिर शॉर्टलिस्ट कर सके, ऑर्डर कर सके, अरेंज कर सके. Let's now try to understand how to make buckets, right? Most of the formatting and structuring tips इसी सेक्शन में, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा. मैंने एक टिपिकल IIM का रिज्यूमे फॉर्मेट लिया है. अपन जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में बनाएं. लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स पीपल यूज. बट बकेट्स तो आपको किसी भी हाल में बनाने हैं. आप टेबल फॉर्मेट में बनाओ, चाहे आप इन्फोग्राफिक्स फॉर्म में बनाओ, चाहे आप रेज्यूमे को 3-4 सेक्शंस में डिवाइड करके बनाओ,
फॉर्मेट बदल सकता है। बकेट्स तो बनाने, बकेट्स का मतलब होता है द क्लियरली आइडेंटिफाइड और डिस्टिंग्विश्ड पार्ट्स ऑफ अ रेज्यूमे। सो इफ यू सी दिस रेज्यूमे, इट्स अ कॉलेज रेज्यूमे, तो ऊपर में एक लोगो डाला हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में नेम एंड जेंडर एंड एज। देखो कितने शॉर्ट में, क्योंकि आइडियली ना एक फ्रेशर रिज्यूमे कोशिश करनी चाहिए एक पेज का बने, अननेसेसरी बड़ा करने की जरूरत नहीं, until unless you have lots and lots of things to talk about. Because understand, you want the recruiter to look at it and in one glance look at the highlighted things and shortlist you, right? तो बहुत लंबा बनाना आइडियली जस्टिफाइड नहीं होता है फॉर अ फ्रेशर। Now look at the internships, the segregation. सबसे पहले देखो ये हाइलाइटर पे ध्यान दो, कंपनी का नाम, राइट हैंड साइड में ड्यूरेशन, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में फर्दर सब बकेट्स है। प्रोजेक्ट क्या था, तो भाई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन द गिवन कैटेगरी, उसमें हाइलाइटिंग को देखो, तो मैंने बोल्ड किया है एज अ टूल फॉर हाइलाइटिंग, राइट, प्रोडक्ट एंड लॉन्च। आई वांटेड दीज वर्ड्स टू पॉप आउट व्हेन समबडी लुक्स एट माय रिज्यूमे फॉर अ ग्लांस, राइट? Okay, now come to accomplishments. There are some things which I delivered. Then comes the success part. So there was a pre-placement interview call, which has again been bolded. So if you look at the bolding part, what was I working on? A product launch. That is the key highlight, right? And then what was the final outcome? My work was recognized because I got a PPI call, right? So हाईलाइटिंग जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि अगर रिक्रूटर पूरी ध्यान से ना भी पढ़ रहा हो तो वो उसे ऊपर वो बाहर आके वो हाईलाइट होके वो जो चीज़ लिखी है ना वो जरूर दिख जाए। तो मैंने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में वर्क किया था भाई कैडबरी कंपनी में, और मेरा वर्क रिकॉग्नाइज हुआ था, तभी तो मुझे इंटरव्यू कॉल आफ्टर समर्स फाइनल प्लेसमेंट के लिए मिली, राइट? दैट इज हाउ यू हाईलाइट। सेकंड देखो, इंटर्नशिप के अंदर में ही एक और मेरा इंटर्नशिप मेंशन है इन अ सिमिलर वे, प्रोजेक्ट एंड सक्सेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, राइट हैंड साइड में नंबर्स भी दिए हुए हैं, जहां भी आप नंबर्स डाल सकते हो ना, लेट्स से इंक्रीज ऑफ सम परसेंटेज, ट्राई टू यूज नंबर्स, हमेशा हेल्दी होता है, इंप्रेसिव लगता है। नेक्स्ट देखो, मैंने एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स किए थे, ये IIMA के मिड टर्म का है। तो ये प्रोजेक्ट जो थे इसमें से पहला अगर आप देखो वो एक प्राइवेट लेबल ब्रांड्स का प्रोजेक्ट है, PK सिन्हा सर के अंडर में किया था मैंने और श्याम ने। इफ यू लुक एट दिस प्रोजेक्ट केयरफुली, दिस इज अ क्रेडिटेड इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। तो ये सब्जेक्ट की जगह एक प्रोजेक्ट लेने का चांस मिलता है, जहां अगर आप उसका पूरा प्रोसेस प्रोफेसर को आप पिच करते हो, अगर आप सेलेक्ट होते हो, उसके बाद आपका वाइवा इंटरेक्शन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने मेन अगेन देखो क्या हाईलाइट किया, काम का मेन क्या था, प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के बारे में था, रिटेल मिक्स पे वर्क किया था, राइट? टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो हाईलाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, अगला अगेन टाइटल दिया, टाइप बताया, ग्रेड, यहाँ ग्रेड मिल चुका था तो ग्रेड भी डाला, एंड कौन कौन से टूल्स यूज किए। ऑल योर फोकस इज ऑन कितनी ब्यूटीफुली पॉइंट को स्ट्रक्चर किया जा सकता है। सो सी, द इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। और ये पर्टिकुलरली मार्केटिंग का रिज्यूमे था, मुझे मार्केटिंग में इंटरेस्ट था, इसीलिए देखो शुरुआत भी किस तरीके से की गई है। आई स्टार्टेड विद my internships which are all related to marketing, and then I moved into my projects, again those of the projects that I did which were related to marketing. Now अगला देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। इसमें एक चीज़ बताना अगेन फर्दर हाईलाइट करना चाहूंगा, ध्यान से देखो बकेट फॉर्मेशन का लॉजिक। एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के अंडर में मैंने यंग गन और PNG लाइव ये 2 इवेंट्स को अलग कर दिया, जबकि ओरेटरी और अदर्स जो हैं वो बकेट्स अलग हैं। तो यंग गन और PNG लाइव नेशनल इवेंट्स थे, लेटेस्ट इवेंट्स थे जो मैंने इंटर IIM लेवल पे, इंट्रा IIM लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उनको अलग बकेट्स बना दिया। हाईलाइटिंग देखो, हाईलाइटिंग में देखो क्या था, कॉलेज का नाम, ऑर्गेनाइजर्स, NDTV, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स कहाँ से थे, राइट, राउंड्स क्या क्या थे, कहाँ ये स्क्रीन हुआ था NDTV प्रॉफिट पे, तो ये सारी चीजें देखो हाईलाइटिंग कितनी अच्छे से की गई है। ऑल्सो पे अटेंशन टू द लॉजिक ऑफ दीज स्मॉल बकेट्स का क्रोनोलॉजी। अगर आप पहले 2 बकेट्स देखो, जैसा कि मैं बता रहा था अभी, ये दोनों IIM की लाइव उस टाइम के थे, राइट? लास्ट ये PNG लाइव बाद में हुआ था, ये बाद में मैंने अपडेट कर दिया था। ये देखो IIMA में सेकंड आई थी हमारी टीम पूरे कैंपस में। तो ये पहले जो पॉइंट्स है वो क्रोनोलॉजिकली वो हैं जो मोस्ट रिलेटेड, मोस्ट रेलिवेंट है इन टर्म्स ऑफ रिसेंसी। बाकी फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बकेट्स में नीचे जा रहे हैं अपन। तो मेन चीज समझो, सब बकेट के अंदर क्रोनोलॉजी भी आप डिसाइड कर सकते हैं, है ना? बट देयर शुड बी सम पैटर्न इन विच you are ordering your points in chronology, all right? और एंट्री में देखो क्या क्या चीजें हाईलाइटेड है, देखते हैं। सिल्वर मेडलिस्ट, फर्स्ट रनर अप, रैंक थर्ड। पहला चीज देखो भाई कि मैंने अचीव किया है। उसके बाद देखो नेशनल, इंटरनेशनल, मिनिस्ट्री, IIT खड़गपुर, टाइम्स ऑफ इंडिया, यूथ अफेयर्स, USA, उन चीजों को हाईलाइट किया है। कौन सा इवेंट था, ऑर्गेनाइजर का लेवल क्या था, राइट? आप तुरंत में दिखाना चाहते हो कि बॉस मैंने ये किया है, और ये देखो ये कितना इजीली आपको दिख रहा है कि मैं किस तरह का बंदा हूं, राइट? तो हाईलाइटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।
अदर्स में देखो जो पॉइंट्स इन बड़े बकेट्स के अंडर में नहीं आ रहे थे, तो IMA कॉम्पिटिशंस हो गया पहला, ओरेटरी हो गया दूसरा। अदर्स में मैंने IIT खड़गपुर में कुछ प्राइज जीता था स्कूल लाइफ में, बैडमिंटन स्टेट लेवल पे खेला था, ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ये पॉइंट्स जो है आपके फिर अलग में आ जाते हैं, अदर्स पॉइंट, राइट। एकेडमिक अचीवमेंट्स अगेन देखो, रैंक दिया हुआ है, बोर्ड्स दिए हुए हैं, कोर्सेज दिए हुए हैं। IIM अहमदाबाद में तो ऐसा था कि वो सब्जेक्ट्स के भी रैंक्स मिलते थे, तो वो भी डाल रखा है ना। तो आप बेसिकली अपने प्रोफाइल में एनी काइंड ऑफ रैंक्स और अवार्ड्स और अचीवमेंट्स, राइट, आप हमेशा चाहते हैं कि उन चीज़ों को हाईलाइट करें। फास्ट में एक क्लास का कुछ और पार्ट देख लेते हैं। ये देखो ये कोर एजुकेशन डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अगर आप ध्यान से देखो, डिग्री से शुरुआत हुई है, स्कूल एंड कॉलेज पे गए हैं, परसेंटेज स्कोर, अचीवमेंट एंड ईयर। अगर ईयर में देखो एक क्रोनोलॉजी है। तो बेसिकली किसी भी ना एक सब बकेट या बकेट के अंदर में या एक किसी भी पार्ट में कोई तो क्रोनोलॉजी जरूर होनी चाहिए, है ना। या तो आगे से पीछे या पीछे से आगे, राइट। दैट डिपेंड्स ऑन आप लेटेस्ट दिखाना चाह रहे हैं या आप बेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, एंड और डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोफाइल कैसा है। तो अगेन देखो, सब जगह सब कुछ हाईलाइटेड नहीं है। 10th बोर्ड में 96%, सारे सब्जेक्ट्स में 95 से ज्यादा मार्क्स थे। IIM अहमदाबाद में एक टर्म में ये स्कोर काफी अच्छा माना जाता है, 3.22। तो जस्ट वो दो चीजें हाईलाइटेड है जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोफाइल को हाईलाइट करेंगे, राइट। को करिकुलर में एक प्रोजेक्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का, एल्गोरिदम है, जहाँ ग्रेड्स भी हैं, देखो अच्छा ग्रेड मिला है, वो सारा कुछ डाला है, राइट। उससे पहले इंजीनियरिंग में सैमसंग और TCS से जॉब ऑफर्स थे, वो भी मेंशन कर दिया। तो आप पहले तो लिस्ट डाउन करते हो आज तक सब कुछ आपने क्या किया है, वो बनता है इतना बड़ा सा लिस्ट, उसमें से आप चुन चुन के डालते हो जो जरूरी है, राइट। लास्ट आप देखो लीडरशिप पोजीशंस, तो IIM अहमदाबाद में मैं मार्केटिंग क्लब और मार्केटिंग इवेंट और उसके अलावा अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आई वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द एल्यूमनाई सेल, राइट, कल्चरल कमेटी एंड पब्लिक रिलेशन सेल। तो 2 साल में 5 क्लब कमेटी का मैं मेंबर था। सब कुछ मैंने इसलिए डाला क्योंकि जनरली लोग 2-3 के रहते थे, मैं काफ़ी एक्टिव था। मुझे लगता है एक और बंदा था कैंपस में, हमें उसके अलावा मैं ही था जो 5 क्लब कमेटी जिसने ज्वाइन की थी। फिर मैंने अपने इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट कमेटी, NSS, इन सब चीज़ों को लिखा है, राइट। एंड लास्ट में अदर इंटरेस्ट, यानी मुझे मेरी हॉबीज़ क्या है, एंड फाइनली द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज हाउ यू डिवाइड your whole profile into buckets into sub buckets, and those into points and points into details. I hope ये सारा गो थ्रू करने के बाद आपको समझ में आ गया कि अच्छा मोटा मोटी पैटर्न ये है। बकेट्स बनाने हैं, पार्ट्स में ब्रेक करना है, हर हेडिंग के अंदर में पॉइंट्स डालने हैं, अचीवमेंट्स डालना है, सक्सेस डालना है, स्टैटिस्टिक्स डालना है, हाईलाइटिंग करनी है, राइट, एंड ईयर्स डालने हैं जहां जहां डालना रेलिवेंट है। ये पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक और चीज देखो, नंबर्स की जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे भी काफी अच्छे से यूज किया गया। आप ध्यान से देखो, मेंबर 1 of 17, राइट, टीम ऑफ 5, स्टूडेंट प्लेसमेंट कमेटी बैच ऑफ 400। नंबर्स दो, आप कितने लोगों की टीम को लीड कर रहे थे, आपने कितना बड़ा कोई प्रोजेक्ट किया जिसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स ऑलवेज मेक योर रेज्यूमे लुक गुड। नाउ आई विल गिव यू सम एडिशनल टिप्स ऑन फॉर्मेटिंग। स्ट्रक्चर और बोल्ड करने के बारे में तो काफी बात हम लोग कर चुके हैं। लेट्स सी some other points. Point number 1, guys, look at this number 300. What is this? I believe for a fresher who is 19 to 21 years of age, a 300 word resume is good enough. You can go to 350, you can come back to 270, 280, but tentatively this should be the length. What if you have a lot of points? Cut short and highlight and put only those which are very, very important or most relevant to the kind of application that you are making. तो देखो किस तरह की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, है ना। वेरिएंट्स बना लो। वेरिएंट्स का मतलब होता है आप सारे पॉइंट्स नहीं डालोगे, अगर आपके पास खूब सारे पॉइंट्स हैं, आप सेलेक्टेड पॉइंट्स डालोगे और बकेट्स को उस हिसाब से ऑर्डर करोगे जिस टाइप की कंपनी है, राइट। एक बार मैं ये फिर से डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है आपके पास पॉइंट्स थोड़े कम है, राइट, तो यार डिटेलिंग करो। जैसे क्या हो सकता है, अगर मेरे पास लिखने को पॉइंट्स कम है तो मैंने एक इंटर्नशिप की, उस एक इंटर्नशिप के बारे में ही मैं इतना बड़ा एक 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ बना सकता हूँ। मैंने कॉलेज में कोई असाइनमेंट किया किसी कोर्स के अंडर में, उसके बारे में मैं 4-5 पॉइंट्स लिख सकता हूँ। वो लेकिन वैसा कोर्स होगा जो थोड़ा मेरी टाइप ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो, राइट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेट्स से कंप्यूटर साइंस की कोई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, TCS में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट C++, जावा, नेटवर्किंग के कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के बारे में लिख दूंगा, है ना। आप अपने करिकुलम की चीजों को मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो बट हाँ, एक पेज का बनाओ, आइडियली ± 300 वर्ड्स का बनाओ। These are the important things, right? Typically ± 0.5 here or there. 11 का font size is what I recommend. Non-fancy font, standard font, and line spacing 1.15 मुझे अच्छा लगता है। अगर आपके पास बहुत कुछ लिखने को है तो आप 1.1 कर लो। अगर आपके पास काफी कुछ कम है लेकिन आप इंप्रेसिव बनाना चाहते हो तो मे बी क्लोजर टू 1.5 लेके चले जाओ। बट मोर और लेस दीज थिंग्स विल गिव यू एन इंडिकेशन ऑन what kind of numbers you should follow.
Further on formatting, अगर अपन देखें, bold is one of the ways in which you can format, or we have already seen this. Some people also use underline. Some people use color contrast. Now, color contrast we had also used. If you had seen in the bucket headings everywhere, the color was slight grayish, right? तो ताकि वो heading और अंदर का part different लगे. तो contrast आप use कर सकते हैं. People use infographic and some icons or design elements to these days. कोई point लिखा उसके left hand side में कोई icon डाल दिया, right? या फिर ऐसे कोई ग्राफ बना दिया, उसके ग्राफ के along 3-4 points में वो जर्नी को एक्सप्लेन कर दिया कि what are the things you did or what you learned, या कोई ऐसा कोई डायग्राम बना दिया जिसमें 4 components एक्सप्लेन कर दिया. These are things, अगर आप कोई चीज़ को particularly highlight करना चाहते हो तो you can do it. There are lots of tools which enable these things, right? I'll come to it in a while. Capitalization is the tool. I personally don't like capitalization. Maybe 1 or 2 word in the whole resume, fair enough. Overdo नहीं करना चाहिए. Quotes, messages, statistics मैंने already बताया है. Messages, like some people like starting their resume with an objective. Career objective क्या है या about me. तो एक line कुछ लिख दिया, right? Okay. Ordering and sizing of buckets. This is very important. तो let's say आप कॉलेज में हैं और आपको 2 तरह की अलग कंपनी में अप्लाई करना है. सपोज एक कंपनी है कोर आईटी की कंपनी है और दूसरी एक कंपनी है जो लेट्स से कंसल्टेंसी फर्म है. तो हो सकता है कि आपके रिज्यूमे में कुछ पॉइंट्स हों जो आप आईटी फर्म में जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू हैव स्टडीड, एनी आईटी कोर्सेज दैट यू हैव डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग एंड व्हाट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस. ज़्यादा उन चीज़ों को आप चाहोगे कि आप आईटी फर्म में अप्लाई करो, के रिज्यूमे में डालो. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कंसल्टेंसी फर्म है तो शायद आपने कुछ हो सकता है एनालिटिक्स का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो, या कोई प्रोग्राम किया हो, या कोई क्लास किया हो, या आप उसमें कुछ इंटरेस्ट रखते हो, कुछ पढ़ा हो, आप उन चीज़ों को ज़्यादा डालना चाहोगे, आपका कोई एक्सपीरियंस हो उसमें, राइट? तो आप डिपेंडिंग ऑन किस तरह की कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, एक मास्टर सीवी होता है, उसके अंदर बहुत सारे बकेट्स होते हैं. आप बकेट को छोटा बड़ा कर सकते हो एंड ऊपर नीचे कर सकते हो. जो जैसे मैंने अपना मार्केटिंग सीवी दिखाया तो मार्केटिंग, इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट सबसे ऊपर, राइट? इन चीजों का ध्यान रखना. ये शॉर्ट सिलेक्शन के बहुत ही एक्सीलेंट फंडाज हैं, है ना? तो अगर आप स्मार्टली वर्क करें, बकेट का साइजिंग कम ज्यादा करें, ऑर्डरिंग ऑफ बकेट्स ऊपर नीचे या आप सही से करें, तो आप अलग अलग टाइप्स की कंपनीज में शॉर्टलिस्ट ला सकते हैं. On that note, let me show you and give you a small peep into the tools which are commonly used. ये देखो, ये couple of I have particularly used Canva, Zeti भी लोग यूज करते हैं. These are tools जहाँ से आप resume के formats यूज कर सकते हो. If you see all these 3 which I have put here, है ना, resume samples, formats, ये फ्री वाले हैं जो Canva से आप यूज कर सकते हो, है ना? आप जस्ट जाना है, आपको वहाँ पर एक अकाउंट बनाना है और उसके बाद सर्च में जाओ, resume samples लिखो, you will get premium and free options. ये तो सारे फ्री वाले हैं. इनके सेकंड पेजेस भी थे, मैंने बस फर्स्ट पेज यहाँ पे डाला टू गिव यू एन आइडिया. लोग देखो किस किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं ना. देयर आर फोटोज हियर. एक जगह लोगों ने लेफ्ट, अगर फर्स्ट और लास्ट वाला देखो, बोथ दीज गर्ल्स व्हाट दे हैव डन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट कलर, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्ररी इन द सेंटर Howard has simply used a single color. Different styles of formatting exist, different formats also exist. You can use these existing formats if you want, right? But इनमें भी तो buckets ही है ना. देखो, language, computer skills, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो पहले रिज्यूमे में, एजुकेशन, these are buckets. प्रोफाइल, राइट? बीच वाले में देखो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, काफी वर्क एक्सपीरियंस है हार्वर्ड का, तो ये एक अलग बकेट है, राइट? नीचे अचीवमेंट्स. तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल, मैं जो मैसेज वाली बात कर रहा था, अबाउट मी भी लिखा है हार्वर्ड ने. यहाँ जुलियाना हैज मेंशन्ड हर करियर ऑब्जेक्टिव. सो you can make your choice, but you know, a good resume making at least takes a month. मास्टर सीवी बनेगा, सर्टिफिकेट्स जुगाड़ने होंगे जो अगर आपके पास नहीं है, आप एक एक बकेट बनाओगे, पॉइंट्स लिखोगे, उन सब के उसके बाद आप उसके 2-3 वेरिएंट्स बनाओगे, तब जाके आप रेडी होते हो यू नो फॉर अप्लाइंग टू मैक्सिमम प्लेसेस. तो पुट इन दैट एफर्ट. एक स्टैंड आउट रेज्यूमे इज अ वेरी पावरफुल टूल. इफ यू पुट इन दैट एफर्ट वंस, फॉर लाइफ यू जस्ट कीप अपडेटिंग इट. देन एक बार बनाना होता है, बाद में अपडेट करना होता है, तो वो मेहनत एक बार कर डालो. Alright, so these Canva and other tools are there. Apart from that, I personally believe MS Word is a very good tool. If you look at this first one, Mira's resume sample, this you get resume formats in MS Word also. So this is the format which I just brought it down, right? Look at this, the first one which I showed, the right hand side one, the 22 years one. My resume in 2011, this one was totally made on MS Word. So you just go there, you keep making buckets and tables and you get it done, right?
The middle one, I just did this some a small sample for this video particularly. This is a resume which kind of highlights the things which I've been doing today, right? So you see, I have used infographics here just to give that idea, and this is all done in MS Word. You can do it. Just go there, create the kind of format, spend time, look at from your eyes, appreciate things what you are doing, look at the color format that you're using, look at the contrast, see if things are looking appealing from the eyes of the recruiter, right? Okay. तो यहाँ देखो मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख डाला, बी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से लेके इंशार्ट स्टार्ट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिल्ली एंड अहमदाबाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा देखो क्रोनोलॉजी एक्सप्लेन्ड है, राइट? नीचे में देखो उसके अंदर मैंने मार्केटिंग में क्या क्या रूल्स किए, राइट? 125K प्लस कंटेंट फॉलोअर्स, क्रिएटेड मार्केटिंग चैनल, लेड स्ट्रैटेजी, लेड टीम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नीचे सम मोमेंट्स टू रिमेंबर. राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो सम नंबर्स विच आर बीन गिवन, राइट? 25,000 प्लस लर्नर्स, 50,000 प्लस क्वेश्चंस, वीडियोस एक्सेट्रा. तो अगर आप देखो MS वर्ड खुद में इतना पावरफुल टूल है रिज्यूमे बनाने का. डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज अदर साइट्स, आई पर्सनली, मुझे बनाना होता है कोई भी प्रोफाइल या रिज्यूमे, मैं तो वर्ड पे जाके बनाता हूँ. यू नीड टू बी good at MS Word to be able to do all this kind of formatting, right? So now I'll wear an expert hat and sum up the most important things that we understood today. सबसे पहला काम रिज्यूमे बनाने में होता है चूज अ फॉर्मेट और लेआउट. दूसरा, मेक बकेट्स, पॉइंट्स डालो खूब सारे. तीसरा, फॉर्मेटिंग करो, बकेट्स का स्ट्रक्चरिंग करो, सब बकेट्स बनाओ, हाईलाइटिंग करो, क्रोनोलॉजी डालो. चौथा, गेट फीडबैक. एक बार तुमने वो कर लिया ना, वेरिएंट्स बना लिया, तो अपने फ्रेंड्स या मेंटर्स से एक दो राउंड फीडबैक ले लो. कई बार वी मिस सम थिंग्स जो हमें नहीं दिखाई देती, बट अगर कोई और देखेगा तो तुरंत बताएगा अरे यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, राइट? एंड लास्ट, वंस यू हैव डन विद दिस, कीप मेकिंग वेरिएंट्स. अलग अलग जिस तरह का अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, कोई कंपनी, कोई कॉलेज, कहीं भी आपको अप्लाई करना है, वेरिएंट्स बनाओ, वर्जन्स बनाओ एंड कीप अपडेटिंग. एक बार की मेहनत है, अच्छे से कर लो, उसके बाद तो बस इस रिज्यूमे को और अपडेट करते रहना होता है और काफी सालों तक आप सॉर्टेड हो. If you liked the success mantra shared in this video, please do subscribe to this channel. I'll be making a new success video at 9 p.m. every Wednesday. I'll share frameworks and success stories on exams, interviews, profile building, and work life with you. Frameworks which have been tried and tested thousands of times. With those words, let's together make success happen in our career. Signing off now. Ciao. फिर मिलते हैं.